Hello friends, I am Ripan Patel. Today we will see the power stages of induction motor. IMP topic we can say. In last lecture we have gone through the circle diagram and vector diagram of the induction motor, and in this session we will see the power stage of induction motor. So in power stage we will see the different power at a different mode, means at a stator side, means at input side, at stator side, at a rotor side, or at shaft side. Okay, what are the losses, what are the power, and what is the torque equation at different positions of the induction motor. So that we will see in the power stage of induction motor. Okay, so we can say it's IMP1. Okay, so let's start with that. Okay, so power stages of induction motor. So now power stages basically deal with a power, as so power come in the picture, so losses is automatically come in the picture. Okay, so here you can see the basic block diagram of the induction motor and a different power and losses level of at a different stage. Okay, now which are the losses basically occur in the induction motor. Now we are aware with that if it is in the winding, we have I square r copper losses is then in iron losses is also core में जो होता है वो iron losses, and rotation motion है, so friction and windage losses is also there. Okay, so we can say कि भी stator losses is always there, and that already depend on the obvious frequency is there, and which is practically constant we can say, because when the load is there, because frequency is a constant. Okay, and when load is there, the current flowing through that, so we can say I square r losses is that is I square r. So for the 3 phase 3 I square r. Okay, 3 phase motor. Okay, now let's go through the different stage of power developed in the induction motor. So here, as you give the supply to the induction motor, so at input side, so input side, that is a stator side, power that is related with a P1. So motor input in stator is indicated by P1. In some book is P in. Okay, but here you have to remember it's a P1. So P1, that is input power or stator power. Okay, then power goes to rotor, but before that some losses occur in the stator. So stator having a winding and core, so stator Cu and iron losses is there. So after iron losses we got the output, and that power go to the rotor, and so it's a rotary input. Okay, so इनपुट P1 है, उसमें से अगर मैं लॉस स्टेटर लॉस बात कर दूँ तो मुझे इनपुट मिलेगा रोटर का, एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय P2. ओके, आई होप यू हैव सीन. अब रोटर में इनपुट चला पावर गया, देन क्या होगा, रोटर रोटेट होगा, तो रोटर में भी लॉस हो गए, Cu लॉसिस. ओके, रोटर में Cu लॉसिस होने के बाद जो पावर बचेगा उसे हम बोलेंगे मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, PM. ओके, सॉरी, मैकेनिकल पावर developed in rotor, that is basically indicated by PM. Okay, so it's a PM that is occur at rotor side. रोटर पे जो पावर मिल रहा है, नॉट अ शाफ्ट साइड बट अ रोटर साइड, एंड एट दैट टाइम द ग्रॉस टॉर्क इज नॉर्मली इंडिकेटेड बाय TG, एंड दैट टॉर्क इज नोन एज अ ग्रोस टॉर्क, TG, जो रोटर पे मिलेगा. आफ्टर दैट वी हैव अ शाफ्ट, तो शाफ्ट पे फाइनली कौन सा पावर मिलेगा, दैट इज आउटपुट पावर, जो हमें आउटपुट में मिलेगा. और वो कब मिलेगा, जब मैकेनिकल पावर जो रोटर में डेवलप हुआ है उसमें से हम विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस बात कर दे, तो मुझे आउटपुट में P आउटपुट पावर मिलेगा. सो दिस इज़ अवर मेन पावर एट द शाफ्ट साइड. ये हमारा जो रेटेड मोटर पे लिखा होता है वो शाफ्ट साइड पावर हो गया. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद द पावर. तो फर्स्टली आई गॉट इनपुट पावर स्टेटर में, फिर उसमें लॉस होगा, तो उसके बाद जाएगा रोटर में, दैट इज इंडिकेटेड बाय P2. सो रोटर इनपुट पावर उसमें, सो इफ वी हैव टू से दैट रोटर इनपुट इज नथिंग बट P1 माइनस स्टेटर Cu लॉसेस, Cu एंड आयरन लॉसेस. सो वी कैन सी बाय इक्वेशन वाइज वी कैन राइट. देन what is a mechanical power developed in the rotor, तो रोटर इनपुट पावर माइनस रोटर Cu लॉसेस. अगर रोटर इनपुट में से मैं रोटर Cu लॉसेस निकाल दूँ तो मुझे मैकेनिकल पावर मिल जाएगा. ओके, एट अ रोटर साइड.
और शाफ्ट में क्या मिलेगा, शाफ्ट पावर क्या होगा, तो रोटर में जो पावर डेवलप हो रहा है उसमें से मैं विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस निकाल दूँ तो मुझे पावर मिल जाएगा, दैट इज शाफ्ट साइड. ओके, सो this is the power stage we can say of the induction motor. Okay, so this is as a input stator side, rotor पे and then shaft side. Okay, so you have to remember this P1, P2, PM, TG, P out. Okay, let's see again. We will clear more. Okay, so here you can see. Okay, आप देख सकते हो. Okay, कि भाई इनपुट पावर का क्या होगा, सॉरी. ओके, सो हियर इनपुट पावर इज दैट मोटर इनपुट एट स्टेटर साइड दैट इज P1. ओके, उसमें से कॉपर लॉस, आयरन लॉस निकाल दो तो बाद में इनपुट जाएगा दैट इज P2 थ्रू दी एयर गैप. ओके, फिर ये जाएगा, ये होगा रोटर का इनपुट हो जाएगा. अब रोटर तो ये स्टेटर का आउटपुट भी है. इन सम वर्ड इट इज गिव, इन सम बुक इट इज गिवन स्टेटर आउटपुट क्या है, तो स्टेटर आउटपुट इज नथिंग बट अ रोटर इनपुट. ओके, सो दैट इज P2. अब रोटर में CU लॉसेस होगा तो मैकेनिकल पावर रोटर में जो जनरेट होगा दैट इज PM, ग्रोस रोटर मैकेनिकल ग्रोस मैकेनिकल पावर. ओके, अब रोटर में भी विंडेज लॉस हो गए तो शाफ्ट साइड हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा जो हमने देखा. तो अगर सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ भी बताया कि भाई एक्टिव पावर हम दे रहे हैं उसमें से CU लॉसेस और आयरन लॉसेस होता है तो हमें P2 एक्टिव पावर रोटर का मिल रहा है. रोटर में तो कॉपर लॉस हो गए, वो लॉस निकाल दो तो फिर मैकेनिकल पावर जो मिल रहा है दैट इज एट अ शाफ्ट साइड, सॉरी एट अ रोटर साइड. दिस PM इज एट रोटर साइड आउटपुट. ओके, और शाफ्ट साइड का पावर है दैट इज P आउटपुट. उसमें जो अगर विंडेज लॉस निकाल दे तो ये मिलेगा हमारा फाइनल आउटपुट पावर. ओके, इसमें टॉर्क इक्वेशन नहीं दिखा है, दैट वी विल सी कि भाई टॉर्क इज मोर अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो इट्स अ पावर फ्लो डायग्राम वी कैन से ऑफ द इंडक्शन मोटर. ओके, सो नाउ sorry. Okay, so now next topic that is obvious related with the torque developed by the induction motor. Okay, is the IMP1 we can say. Now the relation between torque and power is, we have a standard equation T equal to P divided by omega, or on another word we can say P equal to nothing but T into omega. Omega that is angular velocity we can say. Here that come in the form of some speed. Okay, so TG ग्रॉस टॉर्क क्या होगा, ग्रॉस टॉर्क P2 अपॉन ओमेगा S होगा. ओमेगा S इज नथिंग बट 2 पाई NS. NS इज योर सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज P2 इज देयर. अब P2 हमें पता है क्या है, ये TG ग्रॉस टॉर्क है रोटर इनपुट साइड. तो P2 हमें पता है कि P2 यहाँ है तो इसका टॉर्क क्या होगा, P2 यहाँ है तो इसका टॉर्क क्या होगा, ऑब्वियस इज अ इनपुट साइड टॉर्क. ये इनपुट साइड का टॉर्क की बात कर रहा हूँ. अगर आउटपुट साइड का टॉर्क होगा तो इट्स अ PM बाई ओमेगा होगा, PM बाई ओमेगा. ये इनपुट साइड की बात है तो इट्स अ रिलेटेड विथ इनपुट. सो इनपुट पे P2 इज देयर, सो दैट्स वाई P2 अपॉन ओमेगा और P2 अपॉन 2 पाई NS. एंड इन द फॉर्म ऑफ सब आउटपुट TG क्या होगा, PM अपॉन ओमेगा, PM अपॉन ओमेगा, एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई N. Here it's related with the rotor speed, here it's related with the synchronous speed of the stator flux. Okay, so rotor input तो stator का output है. So torque related with the input side of the rotor deal with the synchronous speed, but torque at the output side of the rotor it deal with the rotor speed. Okay, so this is the IMP equation we can say. Okay, so ये रोटर की साइड हमें मिला, रोटर के आउटपुट में मिला. तो सर अब शाफ्ट साइड क्या होगा, तो शाफ्ट साइड में क्या मिलेगा, T शाफ्ट P आउटपुट P अपॉन ओमेगा. तो आउटपुट में पावर P आउट मिल रहा है, P आउट अपॉन ओमेगा, और वैल्यू ऑफ ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई N P आउटपुट. ओके, सो वी कैन से एक टॉर्क हमने यहाँ निकाला, दूसरा टॉर्क हमने यहाँ निकाला, तीसरा टॉर्क हमने यहाँ निकाला. यहाँ जो टॉर्क मिल रहा है वो इनपुट साइड का टॉर्क है और ये है रोटर साइड का टॉर्क में T इंटू ये PM अपॉन ओमेगा होगा, और ये लास्ट में क्या होगा, T इक्वल टू P आउट अपॉन ओमेगा. यहाँ आउटपुट पावर मिल रहा है, यहाँ रोटर का आउटपुट पावर मिल रहा है, ये स्टेटर का आउटपुट पावर मिल रहा है. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद द टॉर्क इक्वेशन.
with reference to a power. Okay, so T shaft torque मिल गया. The shaft torque is due to the output power which is less than P, obvious less than, because the friction losses and windage losses is there. So output power is obvious, वो तो अभी पता है कि भाई जो आउटपुट पावर है और ये मैकेनिकल पावर से कम ही होगा क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है. इसमें से अगर लॉस निकालेंगे तो ही हमें ये वैल्यू मिलेगी. सो आउटपुट पावर इज ऑब्वियस लेस देन द मैकेनिकल पावर. ओके, सो हमें इक्वेशन मिल गया टॉर्क का. ग्रॉस टॉर्क एट द रोटर साइड, सॉरी इनपुट साइड, रोटर आउटपुट साइड एंड एट द शाफ्ट साइड और आउटपुट साइड. ओके, here the value of omega is nothing but a 2 pi n, where n that is come in the form of rps, revolution per second. और हमें उसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे. सो इन अबव एक्सप्रेशन n and ns are in rps. So how here if we are in the form of rpm, we want the equation in the form of rpm. So expression of torque be like tg. tg क्या होगा, ये वाला इक्वेशन क्या होगा, नाउ P2 अपॉन 2 पाई NS डिवाइड बाय 60. सो 60 ऊपर आ जाएगा, 60 अपॉन 2 पाई P2 अपॉन NS, और 60 अपॉन 2 पाई की वैल्यू है 9.55 P2 अपॉन NS. ये हो गया TG, ये वाली वैल्यू TG. ओके, इन द RPM. नाउ इट्स द RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट. ओके, सेम वे torque at the output side we can say, and torque at the shaft side, 9.55 P out upon N. Here synchronous speed is there, here rotor speed, again here rotor speed is there, and all the are speed that come in the RPM. Okay, so it's a we can say it's the IMP equations, torque IMP equation of the induction motor. So now let's go in detail again, where we see the torque, mechanical power and rotor output power equations. Okay, so it's IMP one we can say. Okay, स्टेटर इनपुट क्या है वो हमें पता है कि भी P1 है, और P1 इज़ नथिंग बट जो स्टेटर जो आउटपुट मिल रहा है प्लस लॉसेस. ऑब्वियस वही है कि भाई जो स्टेटर का इनपुट जो हम दे रहे हैं इनपुट वो क्या है, उसमें जो लॉसेस हो रहा है प्लस उसका आउटपुट, वही उनका इनपुट होगा. ऑब्वियस ये वाला टर्म P1 इज़ नथिंग बट ये प्लस ये, ऑब्वियस वही मिलेगा. सो वही हमने दिखाया है. ओके, सो P1 इज़ नथिंग बट स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉसेस. ओके, सेम वे रोटर इनपुट क्या होगा, P2 जो स्टेटर का आउटपुट है वो रोटर का इनपुट है. ऑब्वियस, सो रोटर ग्रॉस आउटपुट क्या होगा, फिर रोटर इनपुट में से रोटर सी लॉसेस बात कर दो तो वो रोटर का आउटपुट हो जाएगा. रोटर के इनपुट में से उसका लॉसेस बात कर दो तो रोटर का आउटपुट मिल जाएगा. ओके, सो ये इक्वेशन है. ओके, नाउ सो वी हैव अगेन डिफाइंड TG, ग्रॉस टॉर्क इज नथिंग बट PM अपॉन 2 पाई N. सो उसके बेस पे हमने ये इक्वेशन लिखा है. तो TG इज नथिंग बट रोटर ग्रॉस आउटपुट इन वॉट अपॉन 2 पाई N, जो अभी हमने आगे दिखा है ये वाला इक्वेशन. ओके, ये वाला इक्वेशन ऑब्वियस रोटर ग्रॉस. ओके, सो TG इज नथिंग बट रोटर इनपुट पावर P2 अपॉन 2 पाई. अब ये इनपुट के फॉर्म में लिया हुआ है, ये आउटपुट का इक्वेशन था, ये इनपुट के फॉर्म में लिया हुआ है. सो दैट्स वाई इनपुट के फॉर्म में है, दैट्स वाई इज द NS, और ये रोटर की स्पीड है, ये सिंक्रोनस स्पीड है. ओके, सो 1 and 2 वी हैव. ओके, सो टोटल ग्रॉस आउटपुट रोटर का क्या होगा, ये रोटर का आउटपुट है और ये रोटर का इनपुट है. ओके, तो ग्रॉस आउटपुट क्या होगा, तो मैकेनिकल आउटपुट तो हमने डिफाइन कर दिया है, PM इक्वल टू TG ओमेगा ऑब्वियस, एंड रोटर इनपुट इक्वल टू P2 इक्वल टू TG ओमेगा. अब ये दोनों का अगर डिफरेंस ले, ये रोटर का आउटपुट है और रोटर का इनपुट, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले तो रोटर का आउटपुट और रोटर का इनपुट, इन दोनों के बीच में क्या बचता है, रोटर का आउटपुट और रोटर का इनपुट, रोटर का आउटपुट और रोटर का इनपुट, ये दोनों के बीच में क्या बचेगा, लॉसेस, एंड दैट इज़ अ CU, कॉपर लॉसेस. तो उन दोनों का अगर डिफरेंस ले रहे हैं हम
So the difference of two equal to rotor CU loss. So rotor CU losses I can write P2 upon PM. लिख सकते हैं कि भाई इनपुट माइनस आउटपुट. सो हाँ, इनपुट माइनस आउटपुट करेंगे तो हमें रोटर CU लॉसेज मिलेगा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P2 एंड PM. आई गॉट दिस इक्वेशन. क्योंकि P2 क्या है हमारा, P2 हमारा पास है TG 2πNS एंड PM क्या है TG 2πN. ओके, सो TG इंटू 2π कॉमन निकाल दे तो फाइनली वी कैन राइट NS माइनस N. ओके, सो ये हुआ रोटर CU लॉसेस. ओके, सो इसे इक्वेशन कोई 4 नंबर दे दो. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रोटर इनपुट. रोटर इनपुट और ये है रोटर CU लॉसेस. तो उन दोनों का रेशियो ले, रोटर CU लॉसेस अपॉन रोटर इनपुट. रोटर CU लॉसेस दैट इज 2πNS माइनस N एंड रोटर इनपुट है 2πNS इंटू TG. तो फाइनली NS माइनस N अपॉन NS होगा and that is nothing but a slip. That is nothing but a slip. So I can say rotor CU losses, so ratio of rotor CU losses to rotor input is nothing but a slip. So it's the IMP equation. We can say rotor CU losses divided by rotor input equal to slip. So slip फॉर्म में आएगा rotor CU losses as a ratio. So from that I can write rotor CU losses equal to S into rotor input. ये इक्वेशन पर से मैं ये लिख सकता हूँ. ओके, अब रोटर इनपुट क्या है हमारा, रोटर इनपुट तो हमारा एयर गैप थ्रू जा रहा है. तो रोटर इनपुट क्या है कि भाई पावर अक्रॉस द एयर गैप P2 है. रोटर में इनपुट जा रहा है वो क्या है, वो स्टेटर का आउटपुट है. सो एट इंटू P2, S इंटू P2 लिख सकता हूँ मैं. सो आई कैन रिटर्न हियर S इंटू P2 एंड दैट इज रोटर CU लॉसेस. अब रोटर का इनपुट क्या है, रोटर का इनपुट इक्वल टू रोटर CU लॉसेस डिवाइड बाय S. वो तो हमने आगे इक्वेशन डिफाइन किया. तो रोटर का ग्रॉस आउटपुट क्या होगा, तो रोटर का ग्रॉस आउटपुट मैकेनिकल आउटपुट, तो उसका इनपुट माइनस CU लॉसेस. सो इनपुट माइनस CU लॉसेस में क्या दिया हुआ है, CU लॉसेस का इक्वेशन हमारे पास इनपुट के फॉर्म में है S इंटू रोटर इनपुट. तो इनपुट माइनस S इंटू रोटर इनपुट, इनपुट कॉमन निकाल दो. सो फाइनली आई कैन राइट 1 माइनस S इंटू इनपुट. तो ये मुझे मिला इक्वेशन ऑफ रोटर ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट का. ओके, रोटर ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट in the form of some slip. Okay, and finally I can write rotor gross output upon rotor gross input, that is nothing but a 1 minus S, or 1 minus S equal to nothing but N upon NS. Standard equation we have that N equal to rotor speed equal to NS 1 minus S. Okay, इसके हिसाब से हमने ये इक्वेशन ली है and that is equal to this. Okay, so and finally from that we can again write this equation: rotor CU losses upon rotor gross output equal to S upon 1 minus S. Okay, so I hope you have clear with this equation, the IMP equation of that. We can say this TG, then this is again we can say IMP equation, this is again we can say IMP equation, this is we can say our IMP equation. Okay, these all are the IMP equations. Okay, that will show the relation between losses and power. Okay, वो लॉस और पावर का रिलेशन बता रहे हैं फॉर द इंडक्शन मोटर एट अ डिफरेंट लेवल. ओके, सो ये टॉर्क का इक्वेशंस, पावर का इक्वेशंस, रोटर में लॉसेस क्या होते हैं, रोटर का इनपुट आउटपुट में टॉर्क क्या इक्वेशन होता है, दैट वी हैव क्लियर हियर. ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दैट. ओके, so it's the IMP one we can say. Okay, so finally the torque equation we have up to we have already defined the torque equation in third lectures. Okay, third or fourth lecture, but now this torque that is related with the power. Okay, so this torque equations is defined as a power and loss. Okay, so now the gross torque we have P2 upon 2 pi ns. Okay, at a shaft rotor side, input side. So we have this equation. Okay, so P2 we have a rotor CU losses upon, now this equation we have defined. Okay, and from that we have
P equal to nothing but a 3I square R. So here rotor side R2 square R2 divided by S. Okay, that we have equation. Now here the value of I2 is nothing but this. I2 की वैल्यू हमारे पास है. Now put the value of I2 in this equation. So we have a P2 equal to. So अब P2 का इक्वेशन क्या होगा, ये रहेगा 3 तो है, I2 स्क्वेयर मतलब ये पूरा स्क्वेयर हो जाएगा, इसका स्क्वेयर होगा I2 स्क्वेयर R2 अपॉन S, ये इक्वेशन बनेगा. जो वैल्यू उड़ रहा है उसे उड़ाते हैं, जैसे कि S ये यहाँ से निकल जाएगा. ओके, सो फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ P2. Okay, so we have this equation. Now put the value of P2 in this equation, Tg. यहाँ अगर हम रखते हैं ये वैल्यू ऑफ Tg, तो Tg इज लाइक दिस. ये एक इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ E2 रोटर साइड, एंड दिस इज विद रिलेटेड विद द स्टेटर साइड, वी कैन से. सो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशंस है. ओके, टॉर्क इक्वेशन. और लेट्स से फाइनली अगर उसको भी मॉडिफाई करो, बिकॉज दिस पोर्शन इज अ कांस्टेंट, वी कैन से पुट द वैल्यू दैट इज के. सो दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट, वी कैन से. सो टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा ग्रॉस टॉर्क, ओके, एट अ रोटर साइड, वी कैन से. सो दिस इज वन इक्वेशन दैट वी कैन से. So I hope you have clear with that torque equation, gross torque equation. One example is here, so you can move to verify. Okay. Said the example say the power input to the rotor of 440 volt 50 hertz 6 pole 3 phase induction motor is 80 kilowatt. रोटर का इनपुट पावर दिया हुआ है, द पावर इनपुट ऑफ रोटर का दिया है इनपुट दैट इज 80. The rotor electromotive force is observed to make 100 complete alternative per minute. तो रोटर की फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन. ओके, सो कैलकुलेट द स्लिप, रोटर स्पीड एंड रोटर कॉपर लॉसेस पर फेज. ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, 100 अल्टरनेशन पर मिनट, यानी 100 डिवाइड बाई 60 मीन साइकिल पर सेकंड. साइकिल पर सेकंड इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी. सो ये किसकी फ्रीक्वेंसी हुई, रोटर की फ्रीक्वेंसी हुई. रोटर की फ्रीक्वेंसी हमें पता है एफ आर इज इक्वल टू नथिंग बट एस इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी. तो रोटर की फ्रीक्वेंसी मिली हमें 1.6667 हर्ट्स इसके बेस पे. ओके, नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. तो फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमें पता है 50. सो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो एस इक्वल टू हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी. तो मुझे स्लिप मिल गई दैट इज़ अ 3.333% और 0.003 स्लिप मिल गई. ओके, अब स्लिप मिल गई जो मुझे फाइंड आउट करनी थी. देन माय सेकंड टर्म इज़ अ रोटर स्पीड. माय सेकंड टर्म इज़ अ रोटर स्पीड. अब रोटर स्पीड का इक्वेशन तो स्टैंडर्ड हमारे पास है n इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एन एस. इसमें मेरे पास स्लिप भी है पर सिंक्रोनस स्पीड नहीं है. सो सिंक्रोनस स्पीड तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एन एस 120 एफ बाई पी. सो 120 फ्रीक्वेंसी इनपुट की दी हुई है, पोल भी दिए हुए है, तो सिंक्रोनस स्पीड मिल गई दैट इज़ अ 1000. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एन एस हियर. सो आई गॉट रोटर स्पीड एंड दैट इज़ नथिंग बट अ रोटर स्पीड. ओके, एंड लास्टली वी हैव अ रोटर कॉपर लॉसेस पर फेज. रोटर कॉपर लॉसेस पर फेज दिया हुआ है. सो रोटर कॉपर लॉसेस अगर होता है तो दैट इज़ नथिंग बट एस इंटू रोटर इनपुट, बट पर फेज इज डिवाइड बाई 3 किया हुआ है. पर फेज इज दैट्स वाई इट्स अ डिवाइड बाई 3. सो रोटर इनपुट क्या है, दैट इज़ गिवन 80 किलोवाट. पर फेज क्या होगा, 80 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. नाउ पुट द वैल्यू 80 डिवाइड बाई 3 इंटू एस. एस की वैल्यू क्या है 0.00 ये वाली. सो मुझे रोटर कॉपर लॉसेस पर फेज मिल गया दिस मच, इतना लॉसेस होगा. ओके, सो आई होप you have a clear with this example. Okay, here we have used the equations. Okay, so I just ended this session here, and these are the assignment question for you. Okay. I hope you have clear with that. Okay, thank you.